Hello students, let us discuss the remaining NCERT question and answers for chapter motion. So next numerical is a motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? So you have to calculate distance traveled. Initial speed is 0 because it is starting from rest. Time t is given 8 seconds. Acceleration is given to you 3 meter per second square. So according to these values, s is equal to ut plus half at square formula is suitable. Now putting these values, you will get s is equal to 96 meter. Next numerical, a driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. यानी एक कार है, उस कार को ड्राइवर 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है और फिर उसने ब्रेक लगा दिए. ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड के बाद उसकी गाड़ी रुक जाती है. देयर इज अनदर ड्राइवर जो 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार को चला रहा है और उसने भी ब्रेक सप्लाई किए. तो ब्रेक सप्लाई करने के 10 सेकंड के बाद उसकी गाड़ी भी रुक जाती है. नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ between speed and time for both these cars, and which of the two cars traveled farther after the brakes were applied. यानी ब्रेक सप्लाई करने के बाद रुकने से पहले किस कार ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है. Now for first car, initial speed u is 52 km per hour. So convert this into meter per second, that is 14.4 meter per second. फाइनल स्पीड v 0 क्योंकि गाड़ी रुक जाएगी. टाइम टेकन t is 5 सेकेंड दिया ही हुआ है. सिमिलरली फॉर सेकंड कार 34 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया 9.4 मीटर पर सेकंड. फाइनल स्पीड इज 0. टाइम टेकन t इज 10 सेकेंड्स. अब ग्राफ बनाएंगे हम फॉर बोथ दीज कार्स. सो दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ. यही बनाने को हमको बोला है. फॉर फर्स्ट कार initial speed is 14.4. This is speed axis na. On time, on x axis we have taken time and on y axis we have taken speed. So 14.4 is the initial speed and then brakes were applied. So what will happen? The speed of the car, it will start reducing and ultimately the car will stop. At time t is equal to 5 seconds, this car will stop. That is, its speed will become 0. Corresponding to t is equal to 5. What is the speed? 0. देखिए इस पॉइंट पर क्या है, ओरिजिन के ऊपर टाइम भी 0, स्पीड भी 0. सो एट t is equal to 5, what is the speed? 0. Similarly for second car, initial speed is 9.4 meter per second. Brakes were applied, so speed of car will reduce and at t is equal to 10 seconds it will become 0. So at t is equal to 10 seconds, what is the speed? 0. Now we have to determine the distance traveled. First, in case of first car, what is the distance traveled? So if you calculate the area under this line, you will get the distance traveled. And what is the area under this line? Area of the triangle, that is 1 by 2 base into height, and 1 by 2 into 5 into 14.4. So this is the area अंडर दिस लाइन एंड दिस एरिया अंडर दिस लाइन इज आर डिस्टेंस ट्रेवल्ड. यानी अगर हम किसी लाइन के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लें तो वो जो एरिया है वो हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड देता है. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट कार इज 1 by 2 into 5 into 14.4, that is 36 meter. Similarly for the second car, if you calculate area under the line CD, this area, you will get distance traveled by the second car. So 1 by 2 base, that is 10 into height 9.4. So the answer is 47 meter. So if you compare these two values, you can see the second car will travel more distance after the brakes are applied. Next question. This figure shows the distance time graph of three objects A, B and C. Study the graph and answer the following questions. A, which of the three is traveling the fastest? यानी इन तीनों में से सबसे ज्यादा तेज कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चल रहा है. Now to understand this concept, take a look at this graph. This is a distance time graph for three objects A, B and C. Now angle between the graph of object A and time axis is theta 1. Between B and time axis is theta 2 and between C and time axis is theta 3.
देखिए ऑब्जेक्ट ए के ग्राफ के बीच में और टाइम एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो है θ1, बी ऑब्जेक्ट के और टाइम एक्सिस के बीच का एंगल है θ2 और सी ऑब्जेक्ट और टाइम एक्सिस के बीच का एंगल है θ3. Now out of these three angles which angle is the maximum? Obviously θ1. सबसे बड़ा एंगल कौन सा इन तीनों में से? θ1, उसके बाद θ2 और सबसे छोटा θ3. तो देखिए कॉन्सेप्ट होता है स्लोप का. जितना ज्यादा ये एंगल होगा उतना ही ज्यादा स्लोप होगा. सो स्लोप फॉर ग्राफ ए इज मैक्सिमम क्योंकि उसका एंगल सबसे ज्यादा है. स्लोप फॉर ग्राफ सी इज मिनिमम क्योंकि उसका एंगल सबसे कम है. तो सबसे ज्यादा स्लोप ऑब्जेक्ट ए का, सबसे कम स्लोप ऑब्जेक्ट सी का. जिस ऑब्जेक्ट का स्लोप सबसे ज्यादा उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी सबसे ज्यादा. जिस ऑब्जेक्ट का स्लोप सबसे कम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी सबसे कम. तो इस हिसाब से ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग द फास्टेस्ट एंड द ऑब्जेक्ट सी इज मूविंग एट द लोवेस्ट स्पीड. तो स्लोप ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, स्लोप कम तो स्पीड कम. ढलान भी बोल सकते हैं. देखिए डे टू डे लैंग्वेज में हम ढलान बोलते हैं तो ये वैसा ही कुछ है स्लोप. तो ढलान आप देख सकते हैं इन तीनों में से वैसे भी अगर देखें तो सबसे ज्यादा दिखने में ही लग रहा है कि इसका है, और जिसका स्लोप या ढलान सबसे ज्यादा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा. एक और सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि एक लाइन, दिस ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. अब इसका स्लोप कितना होगा? स्लोप फॉर दिस लाइन इज 0 एंड if slope is 0 which means this body d is not changing its position. टाइम तो चेंज हो रहा है देखिए, पर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा. मतलब क्या है? ये जो बॉडी है ये रेस्ट पर है. सो स्पीड इज 0. नाउ लुक एट दिस ग्राफ. दिस इज ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट बी, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर सी. देखिए अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं. जिस ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ है उसके लिए वहां पर एक अल्फाबेट दे दिया. तो दिस ग्राफ इज फॉर ऑब्जेक्ट बी, दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट ए, दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट सी. अब हमको बताना है कि सबसे ज्यादा तेजी से कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा. अब बताएं तीनों में से स्लोप सबसे ज्यादा किसका है? ए का, बी का या सी का? ऑब्वियसली बी का. ये देखिए ये लाइन, इसका स्लोप सबसे ज्यादा है. सो ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग द फास्टेस्ट. सेकेंड पार्ट इज, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड. यानी क्या ऐसी पोजीशन कभी आती है कि तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पर आ जाएं? ऐसा तभी होगा जब ये तीनों के तीनों ग्राफ किसी कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जैसे यहां कर रहे हैं देखिए. लेकिन ये तो दो ही लाइन है फॉर बी एंड सी. तीनों एक पॉइंट के ऊपर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो नहीं, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा. हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए. देखिए बी ए को तब पास करेगा जब ये इंटरसेक्ट ऐसे करेंगे, काटेंगे एक दूसरे को. कौन सा बी? दिस इज बी, दिस इज सी. कहां काटा? यहां काटा. दिस इज, यस, फॉर बी, सॉरी, बी एंड ए. हाउ फार सी हैज ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए. सो दिस इज फॉर बी एंड दिस इज फॉर ए. कहां काट रहे एक दूसरे को? इस पॉइंट के ऊपर. नाउ एट दिस पॉइंट ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस. सो दिस लाइन विल इंटरसेक्ट ग्राफ सी एट पॉइंट टी. देखिए पॉइंट डी वो पॉइंट है जहां पर बी और ए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को पास कर रहे हैं. ये वो पॉइंट है. इस पॉइंट के ऊपर टाइम एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, एक डॉटेड लाइन बनाओ. वो डॉटेड लाइन सी को जहां इंटरसेक्ट करेगी, कहां काटेगी, वहां पर आप एक पॉइंट को नाम दे दी पॉइंट टी. दिस इज द पॉइंट टी. अब इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए वाई एक्सिस पर, तो जो वैल्यू आएगी वही डिस्टेंस कवर्ड होगा बाय सी, दैट इज 6.5 इज द आंसर. नेक्स्ट इज, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी. तो देखिए ये है बी, दिस इज सी. कहां काट रहे एक दूसरे को? इस पॉइंट पर. सो फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस. सो 5 is your answer. Next question. A ball is gently dropped from a height of 20 centimeter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. With what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? So initial speed is 0. Final velocity we have to calculate. A is given to you, S is given to you. So सबसे पहले हम निकालेंगे final velocity by using this formula, and that is 20 meter per second. After that we will use the formula V is equal to U plus AT. And from this time is going to be 2 seconds.
The speed time graph for a car is shown here. This is speed time graph. You can see it is graph between speed and time. और ये कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ है. Find how far does the car travel in the first 4 सेकेंड. यानी पहली 4 सेकेंड में जो ये जो गाड़ी है इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा. शेड द एरिया ऑन द ग्राफ. ग्राफ के ऊपर एरिया को शेड भी करना है, विच रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. एंड सेकेंड पार्ट इज विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन. सो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. तो ये तो 6 के बाद आएगा. देखिए दिस बिटवीन बियॉन्ड 6 आफ्टर t इज इक्वल टू 6 सेकेंड आर मोशन इज यूनिफॉर्म. सो सेकेंड पार्ट कवर हो गया. फर्स्ट पार्ट देखते हैं. देखिए I just told you, if speed time graph is given to you and you want to calculate distance traveled, then just calculate area under the curve, area under the graph. ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए. तो अगर आपका स्पीड टाइम ग्राफ है आपको डिस्टेंस मिल जाएगा. यहां पर आपको ये स्क्वायर्स दिए हुए हैं. देखिए स्क्वायर्स. तो जो शेडेड एरिया है हमको किस टाइम के बीच का निकालना है, 0 और 4 के बीच का. तो अगर हम ये शेडेड एरिया कैलकुलेट कर लें तो हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगा. तो देखिए यहां पर अलग अलग छोटे छोटे स्क्वायर हैं और सभी स्क्वायर का साइज जो है वो सेम है. तो अगर हम एक स्क्वायर का एरिया निकाल लें और ये काउंट कर लें कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं और फिर उस एरिया ऑफ स्क्वायर को टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगा. तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कीजिए, एक स्क्वायर का एरिया काउंट कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टोटल एरिया शेडेड एरिया मिल जाएगा. वही हमारा आंसर होगा. नाउ ऑन एक्स एक्सिस ये बड़ा आसान है, कैलकुलेट कर सकते थे कि ऑन एक्स एक्सिस. पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं. ऑन एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 5 स्क्वायर्स रिप्रेजेंट्स 2 सेकेंड. देखिए 2 सेकेंड रिप्रेजेंट करने के लिए 5 स्क्वायर लगे. तो एक स्क्वायर कितने सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करेगा, 2/5 सेकेंड को. 5 स्क्वायर लगे 2 सेकेंड्स रिप्रेजेंट करने में, तो एक स्क्वायर लगेगा 2.5 सेकेंड में. तो एक स्क्वायर की वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस इज 2.5 सेकेंड. सिमिलरली ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर देखिए 1 2 3 स्क्वायर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट 2 मीटर पर सेकेंड. तो एक स्क्वायर कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 2/3 मीटर पर सेकेंड. तो अगर हमको एक्स एक्सिस की वैल्यू भी मालूम चल गई, स्क्वायर की वाई एक्सिस भी पता लगी, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो एक स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा हमको. नाउ फॉर वन स्क्वायर द एरिया इज 2/5 इंटू 2/3. तो एक स्क्वायर का एरिया मिल गया हमको. अब हमको काउंट ये करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हैं कितने. देखिए इसमें एक अजम्पशन मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कुछ जो स्क्वायर्स हैं उनको ग्राफ अलग तरीके से काट रहा है, कुछ ज़्यादा छोटा हिस्सा कट रहा है, किसी का ज़्यादा कट रहा है. सो वी विल मेक एन अजम्पशन. वो स्क्वायर जो हाफ या हाफ से ज़्यादा है उसको एक काउंट करेंगे, और वो स्क्वायर जो हाफ या हाफ से कम है, हाफ से कम है, उसको इग्नोर कर देंगे. तो हाफ या हाफ से ज़्यादा 1 और हाफ से कम है तो इग्नोर. जैसे कि आप ये पहला ही स्क्वायर लीजिए, ये वाला, दिस वन. तो दिस इज मोर देन हाफ, तो इसको 1 कंसीडर करेंगे. जैसे ये वाला करते हैं, दिस स्क्वायर, दिस इज लेस देन हाफ, तो इसको इग्नोर कर दीजिए. ये हाफ है तो 1 काउंट हो जाएगा. ये लेस देन हाफ है तो इग्नोर कर देंगे. नाउ बाय डूइंग सो द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इफ वी काउंट आर गोइंग टू बी 63. इस अजम्पशन के साथ अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स को काउंट करते हैं हम लोग तो 63 बनते हैं. देखिए जो हमने इग्नोर किया वो यहाँ ऐड हो जाएगा इसमें. तो ओवरऑल जो है हमारा नंबर ऑफ स्क्वायर उतने ही रहने वाले, एरिया उतना ही रहेगा. सो 63 स्क्वायर्स आर देयर. सो मल्टीप्लाई 63 by 4/15. सो आंसर इज गोइंग टू बी 16.8 मीटर. तो ये जो सारे स्क्वायर्स हैं इनका एरिया है 16.8 और वही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल है, दैट इज 16.8 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. State which of the following situations are possible and give an example for each of these. An object with constant acceleration but zero velocity. देखिए किसी हाइट से आप जस्ट ड्रॉप करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को. उस केस में क्या होता है, आपकी स्पीड 0 है बट एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन दी बॉडी. अर्थ क्या कर रही है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और क्या एक्सेलरेशन होगी, 9.8. So an object with constant acceleration but zero velocity is possible. For example, when an object is just released from height, then it is being acted upon by constant acceleration. उसके ऊपर acceleration due to gravity तो act कर ही रही है. Next,
एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है और जो एक्सेलरेशन है वो उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। यस, दिस इज पॉसिबल। देखिए वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमने एक स्टेटमेंट लिया 30 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, 30 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये मैग्नीट्यूड 30 किलोमीटर पर आवर और ईस्ट है आपकी डायरेक्शन। नाउ देर आर टू वेज इन विच वी कैन चेंज द वेलोसिटी, आइदर यू चेंज द मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी को चेंज करने के दो तरीके, या तो मैग्नीट्यूड को चेंज कर दीजिए या डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। दोनों ही सिचुएशन में वेलोसिटी चेंज होगी। तो अगर मान लीजिए आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी बॉडी एक ही स्पीड से चल रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी चेंज होगी बावजूद इसके कि बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट थी। तो अब देखिए एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर एक बॉडी मूव कर रही है, तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस बॉडी एट पॉइंट ए, कि पॉइंट ए के ऊपर बताओ इस बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, यानी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो आप पॉइंट ए के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फिर पॉइंट बी के ऊपर पूछा, फिर वहीं हमने वही काम किया, उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो पूरे सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपसे डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछा जाता है तो वहां एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होगी। सो हियर यू कैन सी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन है, इधर ये डायरेक्शन है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज हो रही है बावजूद इसके कि बॉडी एक ही स्पीड से, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। सपोज इट इज मूविंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, तो एक ही स्पीड से मूव कर रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो वी कैन से द वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो यानी इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या इस केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है? यस, इट इज चेंजिंग बिकॉज डायरेक्शन ऑफ बॉडी इज चेंजिंग। सो कैन वी से this is an accelerated motion? Yes, this is an accelerated motion because velocity of the object is changing, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था। दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। एंड द डायरेक्शन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, its direction is towards the radius of the circle. So at this point, what is the direction of acceleration? Towards the radius. So what is the direction of motion? Tangent to the point, tangent at this point. What is the direction of acceleration? Towards the radius. These two are perpendicular to each other. Hence it is proved. यही तो क्वेश्चन था हमारा। An object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction, तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। An object moving in certain direction with an acceleration in perpendicular direction is possible. Next, an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 km. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. So 42,250 हमारा क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस। सो v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी, सर्कुलर है ना, तो 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना डिस्टेंस? 2 पाई आर। सो योर v इज गोइंग टू बी 1106.465.4 किलोमीटर। सो दिस इज योर वेलोसिटी। अगर इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आने वाला है। दिस इज पर आवर, और अगर पर सेकंड निकालना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 3600, सो 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। ऑल दी वैल्यूज आर गिवन टू यू, जस्ट कैलकुलेट दी स्पीड और पर सेकंड में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। नाउ प्रिपेयर नोट्स फॉर दिस चैप्टर इन योर फेयर स्कूल नोटबुक।